Welcome student in my YouTube channel Easy Chemistry. Now today our topic is in Nernst equation. Now we are starting. Yes, you can see here we have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. So you can see here this need not be always true. So according to the Nernst equation, Nernst show that it is a scientist name that for the electrode reaction Mn positive aqueous plus Ne negative arrow headed arrow forwarded arrow Ms. From here you can see here M positive means metal ions in aqueous state and N means number of the electrons and M is the metal. नेक्स्ट बात कर लेते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस. You can see here E electrode E shell equals होता है E standard electrode potential minus RT NF. You can see here E metal electrode potential upon ions equals हो जाएगा E standard electrode potential minus RT upon NF Ln M upon Mn positive. और this mark represent this type marks represent for the concentration. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रॉम हियर R is a you know it is known as the gas constant. R is known as the gas constant and F is known as the Faraday constant. The value of Faraday constant is 96487 कूलाम पर मोल. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड स्टेट द कंसंट्रेशन मस्ट बी यूनिट एज यूनिट. तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो ये फॉर्मूले में यहाँ पर हमारा m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 1. देन बात करते हैं ऑलरेडी हैज़ बीन R इज ए गैस कांस्टेंट. यू कैन सी हियर R इज ए गैस कांस्टेंट जूल पर केल्विन पर मोल. F is the Faraday constant value given here. T is the temperature in we can take the temperature in Kelvin. M positive is the concentration of species. Yes, next बात कर लेते हैं in the Daniell cell. Actually you know in a Daniell cell the electrode potential for any given concentration copper 2 positive and Zn2 positive ion we written as a cathode as well as a anode. From here you can see here electrode potential of copper and standard electrode potential. This mark degree mark represent the standard electrode potential. तो माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन. डू यू अंडरस्टैंड Ln मीन्स log base E. When log base E then we can also change the value of log base E. You can see here so log base E, suppose that we have the log base E x, then if we want to convert this value then we add 2.303 log x. It will be log x. तो 2.303 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जब वो log base 10 में कन्वर्ट होगा. देन आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑल एट द एनोड एंड कैथोड you know actually in Daniell cells LOAN. लोन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव. तो यहाँ पे यू कैन सी हियर सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक. तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E कॉपर एंड माइनस E जिंक मीन्स दैट कैथोड माइनस एनोड या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो ऑल ओवरऑल जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी सेल पोटेंशियल आएगा हमारा यहाँ पर E शेल इक्वल्स हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT 2 अपॉन 2F Ln Zn2 positive upon copper 2 positive. It can be seen that
cell electrode potential of cell depend on the concentration of both copper as well as the zinc ions. Yes, it increases with increase the concentration of copper ions and decreases with concentration of the zinc ion. तो हम कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा और जिंक की बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो ये डिक्रीज होगा. नेक्स्ट बात करते हैं बाई कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम इक्वेशन में 3.11 to the base 10 and substituting the value of R, F and T 298 Kelvin, it's reduced to this. यहाँ पे बात कर लेते हैं. तो आफ्टर log base 10 में कन्वर्ट करने पर ये वैल्यू हो जाएगी RT अपॉन NF. जो वैल्यूज थी ये हमारी हो जाएगी, यू कैन सी हियर इट विल बी 0.0591 अपॉन n. n means यहाँ पर we using 2 means suppose that when a copper or zinc, when a zinc metal remove 2 electron gives us 2 electron 2 positive. तो यहाँ पर ये electrons है 2. तो we should use the same number of electron n for both the electron and thus the following cell equation you can see here. नेक्स्ट बात कर लेंगे इसमें फॉलोइंग इक्वेशन सेम इसी तरह से होगी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर निकल. यू कैन सी हियर NiS, इट इज रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ मार्क रिप्रेजेंट फॉर द इलेक्ट्रोड एंड इट इज मार्क फॉर द साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिज. तो यहाँ पर निकल एज वेल एज यू कैन सी हियर सिल्वर इलेक्ट्रोड और सिल्वर मेटल का यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का. नेक्स्ट बात कर ले सेल ई शेल इक्वल्स हो जाएगा ई स्टैंडर्ड सेल्स पोटेंशियल माइनस के RT NF Ln निकल 2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर. नेक्स्ट बात करते हैं एंड फॉर द जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप यू नो AA प्लस BB और NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईयर C प्लस DD एंड नस्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऑन विद द बेसिस और विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो यू कैन सी हियर तो ई शेल इक्वल हो जाएगा ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT NF Ln Q और फ्रॉम हियर Q वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू द CC एंड DD अपॉन A and B. Small a and small b as well as C and D are the coefficients of a given equation. You can see here. Next बात कर लेते हैं क्वेश्चन. Repeat the cell in which the following reaction takes place. तो you can see here MgS में solid state में plus 2 Ag positive 0.001 m concentration given है या Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है यहाँ पर Ag का. तो यू कैन सी हियर कैलकुलेट इट्स शेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 3.17 वोल्ट. तो विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द सेल इक्वेशन Mg इलेक्ट्रोड Mg2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्रॉम हियर इट इज रिप्रेजेंट द साल्ट ब्रिज डबल marks represent the salt bridge and Ag2 positive concentration 0.001 m and Ag. Next you can write here E cell is equal to minus E cell equals हो जाएगा E standard electrode cell potential minus RT putting the value of given actually the value of RT upon NF equals the 0.0591 volt upon 2 and log value Mg की कंसंट्रेशन अपॉन Ag की कंसंट्रेशन एंड यहाँ पर Ag का स्क्वायर है देन वी ऑल्सो अप्लाई 2 फ्रॉम हियर. देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है 3.17 एंड यहाँ पर जो वैल्यू आई है Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर की, तो वो वैल्यू पुट करके हमारे 2.96 वोल्ट हमारा सेल पोटेंशियल आ जाएगा. नेक्स्ट बात कर लेते हैं if the current in Daniell cell 3 point is closed then we note that क्या नोट कर सकते हैं हम. you can also see here Zn
S plus copper to positive, forwarded arrow Zn to positive and copper takes place, and the time passed, the concentration of zinc to positive keep on the increasing while the concentration of copper keep on decreasing. Yes, तो एक की concentration बढ़ रही है, एक की कम करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है. At the same time voltage of the cell as read on the voltmeter kept on decreasing. Yes, after some time we shall note that there is no change in the concentration of copper to positive and zinc ion at the same time. Yes, तो देख सकते हैं, you can see here the voltmeter giving zero reading, this indicate the equilibrium has been attained. तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं ई शेल की वैल्यू. ई शेल सपोज दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो ई शेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस के 2.30 ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला, एंड यू कैन राइट हियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल्स हो जाएगी यहाँ पर 2.303 RT अपॉन F means Faraday constant, and log Zn2 positive upon copper 2 positive. But at equilibrium condition, the concentration of Zn2 positive and copper 2 positive represented by the Kc and temperature 25 Celsius को कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन. देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो लॉग ये होगा 0.059 वोल्ट अपॉन 2 log Kc, और इसकी वैल्यू इक्वल्स होती है 1.1 वोल्ट. वैन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इक्वल्स हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा एज अ डैनियल सेल्स. तो log Kc इक्वल्स वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद में 37.22 ऑल ओवर आ गई. यहाँ पर Kc रिप्रेजेंट फॉर द कंसंट्रेशन कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है. C मीन्स रिप्रेजेंट फॉर द कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 RT NF log Kc. Relation between equilibrium constant of the reaction and standard potential of cell in which the reaction is placed. Thus the equilibrium constant of the reaction difficult to measure, otherwise can be calculated from the corresponding standard electrode value of the cell. Next question देख लेते हैं. You can see here, after the putting the value, calculate the equilibrium constant of the reaction. कॉपर S और Ag की वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ पर. तो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.46 वोल्ट है. तो सॉल्यूशन यू नो दैट ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू होता 0.059 V अपॉन N. N मीन्स यू कैन सी हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 अपॉन लॉग Kc. Kc की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, देन यू कैन ऑब्टेन 0.46 वोल्ट. देन अब देख लेते हैं Kc की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर. तो Kc क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0.46 वोल्ट इंटू 2 क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपॉन 0.059 वोल्ट, और इक्वल्स हो जाएगा 15.6, एंड Kc इक्वल्स हो जाएगा हमारा 3.92 इंटू 10⁻⁻15 जब लॉग की वैल्यूज़ को हम अप्लाई करेंगे. देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नोटेबल पॉइंट है इसमें, electrochemical cells and gives energy for a reaction. So you can see here electrical work done in 1 second is equal to the electrical potential multiplied by the total charge passed. तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है. G का मतलब है gives energy, और डेल्टा R मीन्स फॉर द रिएक्शन. तो डेल्टा RG इक्वल्स होता है -NF E cell. तो इट में भी numerize that E shell is the intensive parameter, but delta RG is an extensive thermodynamic property and the value depend on the N. Thus we can write here जिंक और कॉपर की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, और डेल्टा R रिएक्शन के लिए -2FE. यहाँ पर N2 इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस किया हमने. देन इसके बाद में रिएक्शन डेल्टा RG की वैल्यू हो जाएगी -4 FE सेल.
if the concentration of all the reacting species is unity, then the shell और इक्वल्स हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हम कह सकते हैं डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इक्वल्स हो जाएगा माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह से यू कैन सी हियर फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई शेल we obtain an important thermodynamic quantity delta R standard gives energy। तो ये it is very important formula for find out the value of delta R standard potential। next देख लेते हैं related questions after the putting the value we obtain। example 3.3 the standard electrode potential for the Daniell cell, you can see here Zn calculate 1.1 volt, calculate the standard gives energy। जिंक Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का रिडक्शन, रिडॉक्स कपल है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो सॉल्यूशन में डेल्टा आर स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल वैल्यू को पुट करेंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, फैराडे कांस्टेंट 96487 सी पर मोल एंड इसकी वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद में -21.2227 किलो जूल पर मोल वैल्यू वी इजीली फाइंड आउट। नेक्स्ट अदर रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी से हैं। तो नेक्स्ट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अदर रिलेटेड बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अस।